Good morning, students. We will discuss third chapter in civics, how the state government works. लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने गवर्नमेंट के अंदर लेवल होते हैं. हमने पहले भी 6th क्लास में भी रीड किया है. लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देयर आर 3: लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड हाउ द गवर्नमेंट फंक्शनिंग. Here we will discuss that कि गवर्नमेंट हमारे लिए कैसे वर्क करती है. The state government has a complete chain of departments to deal with the different fields. That first, public health department, education department, police department, agriculture department, and so on. So here we go that how the government is established. The first we can say the chain, the first part is MLA, who is elected member of the legislative assembly. And who elected the members of legislative assembly? That means who elected the MLA? People, by casting their vote, they elected the MLA. After elections, what is the process by which party get ruling party? By the majority. The majority is the only term by which a political party established as a ruling party, and the remaining parties were belong to the opposition party. Here we will discuss some more important points, that who will become the chief minister. The leader of the majority party in the state assembly becomes the chief minister. And what प्रॉब्लम वाज देयर इन पाटलिपुरम. अब हमने चैप्टर के ड्यूरिंग एक पाटलिपुरम नाम की एक विलेज आया है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी. देयर वाज एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई शॉर्टेज ऑफ इन पाटलिपुरम. एंड हु विल सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम? दैट द चीफ मिनिस्टर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और द गवर्नर. There are 3 terms used in the government and so many, but we will discuss in this chapter only 3 terms. Legislative assembly के अंदर कौन कौन आता है, हमारे MLAs आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं. हमारी गवर्नमेंट को कौन चलाता है किसी भी स्टेट के अंदर, हेड कौन होता है, who is the head of the state government? So here the answer is governor. Governor is the head of the state government. And do you understand by legislative assembly? A legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meets and discuss about the matters, about the problems, what have been adopted and what have been discussed. Here let us start the main point of the chapter, which is very important for you, and through the points we discuss the whole chapter. Notes of the chapters 3: how the state government works, class 7 civics. Every state in India has a legislative assembly. अब किसी भी स्टेट के अंदर कोई वर्क करता है तो वो दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली. एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कौन कौन होता है? MLAs होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं एंड अदर्स मेंबर ऑफ द असेंबली. ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू एरियाज एंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज. अब स्टेट्स को भी डिवाइड कर दिया गया है. MLAs कहाँ से इलेक्टेड होकर के आते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, या फिर हम कहें एरियाज से, जहाँ पर इलेक्शन होते हैं. और इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? हमें पता है कि वोटिंग राइट किनको है. 6th क्लास में आपने रीड किया था. 18 years or above the 18 years have the right to vote and have the right to elect the MLA. Okay. Next, from each constituency the people elect one representative who then become a member of the legislative assembly, and these MLAs belong to the different political parties. कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जब पीपल को इलेक्ट किया जाता है, एक रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं, हु देन बिकम, बाद में वो क्या बन जाता है? एक
मेंबर बन जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली का। और दीज MLAs बिलोंग टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। ये जितने भी MLAs हैं वो सभी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब हम बात करें कि पार्टी, रूलिंग पार्टी क्या होती है, अपोजिशन पार्टी क्या होती है। रूलिंग पार्टी वो होती है जितने भी MLA जो चुने जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, वो किसी एक पार्टी से यदि हाफ, मोर देन हाफ या फिर हम कहें हाफ, तो वो क्या होते हैं, रूलिंग पार्टी में इंक्लूड होते हैं, वो मेजॉरिटी में आ जाते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी हुज MLAs हैव वॉन, देखिए अब आई गई है ये इंपॉर्टेंट बात। अ पॉलिटिकल पार्टी हुज MLAs हैव वॉन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट कैन बी सेड टू बी द इन अ मेजॉरिटी। कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में यदि MLAs मोर देन हाफ से ज़्यादा नंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो जीत जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, मेजॉरिटी पार्टी बन जाती हैं। एंड द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजॉरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी एंड ऑल द मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन। जितने भी मेजॉरिटी पार्टी यानी कि किसी एक रूलिंग पार्टी के अंदर जब मेजॉरिटी आ जाती है तो उसको हम मेजॉरिटी पार्टी कहते हैं। अब वो क्या हो जाती हैं, रूलिंग पार्टी से बिलोंग करती हैं। दैट मीन्स दैट इज़ द रूलिंग पार्टी। एंड ऑल अदर मेंबर्स, जो पार्टीज रह गई हैं जो मेजॉरिटी में नहीं इंक्लूड हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अपोजिशन पार्टी। आफ्टर द इलेक्शन द MLAs बिलोंग्स टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। इलेक्शन के बाद जब हम बात कर रहे हैं जो MLAs बिलोंग करते हैं रूलिंग पार्टी से, वो इलेक्ट होते हैं। उनमें से कोई ना कोई एक पर्सन इलेक्ट किया जाता है लीडर के रूप में, या कहें कि हम सभी की कहेंगे सहमति, यहाँ पर एग्री जरूरी है। और उसके बाद एक पर्सन को लीडर के रूप में चुना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर कहते हैं। द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर्स। अब जो हमारे लीडर चुने गए हैं जिनको हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं, वो लीडर क्या करते हैं, अब डिफरेंट MLAs को डिफरेंट मिनिस्ट्रीज प्रोवाइड करते हैं। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो सकती हैं, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से हो सकती हैं, एंड अदर सो मैनी। एंड अ डिबेट इज़ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हम बात करेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वर्क कैसे होता है बेटा। अब वहाँ पर कोई नॉर्मल प्रोसीजर तो है नहीं, वहाँ पर क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं डिफरेंट इश्यूज़ को लेकर के, और उसके ऊपर डिबेट होती है। एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ बिल्डिंग सिचुएटेड इन द कैपिटल ऑफ द स्टेट। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो हमारी कैपिटल के अंदर, हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली वो कहाँ पर है, हमारी कैपिटल में। एंड स्टेट वेयर द MLAs फ्रॉम रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी मीट टू डिस्कस द डिबेट्स इश्यूज़। अब जितने भी स्टेट्स के भी यदि हम पार्टी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि वो डिफरेंट इश्यूज़ पे डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, उसके फेवर में बात करते हैं ताकि वो डिसीजन लिया जा सके। ड्यूरिंग डिबेट टाइम इन द असेंबली MLAs कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड ask questions related to the issue or give suggestions about what should be done by the government। अब डिबेट के ड्यूरिंग ही क्या होता है, MLAs जो हैं हमारे वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने ओपिनियंस को, अपने व्यूज़ को, अपने क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर और अपने सजेशंस दे सकते हैं। एंड what should be done by the government। The minister then replies to the questions and tries to assure that the assembly that adequate steps are being taken। अब जो मिनिस्टर्स हैं वो रिप्लाई करते हैं एडिक्वेट क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जितने भी इश्यूज़ वहाँ पर अराइज होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो उनको असेंबली के अंदर कोई ऐसी स्टेप्स वो उठा रहे हैं, उनके द्वारा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जा रही हैं, वो ऐसे एश्योरेंस उन असेंबली मेंबर्स को वो दिलवाते हैं। The chief minister and other ministers have to take decision and run the government। अब जो चीफ मिनिस्टर हैं या फिर हम कहें कि अदर डिपार्टमेंट्स के जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सभी उसके लिए डिसीजंस लेते हैं और गवर्नमेंट को रन करते हैं। दैट मीन्स वर्किंग प्रोसेस में रखते हैं। Whatever decisions are being taken have to be approved by the member of legislative assembly। अब जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं बाय टेकन बाय द गवर्नमेंट, अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अप्रूव्ड होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से
All the members who gather together in the legislative assembly are called the legislature. जितने भी MLAs हैं, all the members who gather together in the legislative assembly are called the legislature. अब all the members who gathered together in the legislative assembly total is called the legislature. जितने भी लोग वहाँ पर इकट्ठा हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं. ये क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बेटा, प्लीज़ नोट डाउन दें. वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. देयर आर various newspapers, TV channels and other organizations regularly talking about the government. अब हमें पता कैसे चलेगा कि गवर्नमेंट में क्या चल रहा है? तो हमारे कौन से ऐसे हेल्पर्स हैं जिनकी वजह से हमें गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंचा सकते हैं हम, और गवर्नमेंट के अंदर क्या वर्किंग हो रही है उसके बारे में जान सकते हैं. तो ये हमारा वर्क प्रोसेस कौन करता है? हमारे न्यूज़पेपर वाले, टीवी चैनल्स वाले एंड अदर सो मैनी ऑर्गेनाइजेशन दोज हु आर वर्किंग फॉर द पीपल, फॉर द गवर्नमेंट. वी कैन से दैट वे हमारी गवर्नमेंट के अंदर क्या प्रोसीजर चल रहा है वो सब हेल्प हमारी कौन करता है? न्यूज़पेपर वाले, टीवी चैनल्स वाले और अदर ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं. इन ए डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड ऑल्सो टेक एक्शंस. अब डेमोक्रेसी के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी होती क्या है. तो अब डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, सो देर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़. यहाँ पर बहुत सारी आज़ादी है हमको कि हमारे व्यूज़ को हम किसी भी तरह से मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, या फिर हम कहें न्यूज़पेपर के थ्रू, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किसके सामने रख सकते हैं? हमारी गवर्नमेंट के सामने. और हमारे पास ये आज़ादी भी है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं किसी भी इशू को उठा करके. यानी कि कोई भी प्रॉब्लम यदि हमें होती है तो हम उसका सोल्यूशन इन डिफरेंट प्रोटेस्टेंट्स के ज़रिए निकाल सकते हैं. एंड देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स सच एज द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एंड द हेल्थ डिपार्टमेंट. चैप्टर के ड्यूरिंग भी हमने बात की थी हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड इश्यूज से. तो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स ने उन्होंने प्रोटेस्ट किया किसके सामने? MLAs के हाउस के सामने. एंड हेडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स. अब हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को वर्क करने के लिए कर दिया जाता है. जैसे कोई भी डिपार्टमेंट है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, किसी जैसे हमारे MLAs हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उनको वर्क डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ एजुकेशन डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स एंड देयर आर सो मेनी. एंड चीफ मिनिस्टर्स अब इसमें हेड का रोल करते हैं, और जितने भी रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स हैं वो उनको संभालते हैं डिपार्टमेंट्स को. द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स टेक एक्शन थ्रू दीज डिपार्टमेंट्स. अब चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स किस तरह से हेल्प करते हैं? इन सभी डिपार्टमेंट्स को अच्छी तरह से वर्किंग प्रोसेस में ला करके वो हमारी हेल्प करते हैं, और उसके बाद ही हम ये सभी सुविधाएं, ये सभी फैसिलिटीज़ जो हमें आज मिलती हैं वो हम इंजॉय करते हैं. वट एवर द वर्क इज़ डन बाय द those departments has to be approved by the member of legislative assembly. अब उनको ये पावर कहाँ से मिलती है बेटा कि वो इन डिपार्टमेंट्स में वर्क कर सकें, अच्छे से डेवलपमेंट ला सकें, हमारी हर ज़रूरत को, नीड को वो फुलफ़िल कर सकते हैं. तो ये सभी चीज़ें कहाँ से अप्रूवल चाहती हैं? ये चाहती हैं अप्रूवल लेजिस्लेटिव असेंबली से. जितने भी इश्यूज़ होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सभी डिबेट के ज़रिए डिस्कस की जाती हैं एज लेजिस्लेटिव असेंबली में, और आफ्टर दैट अप्रूवल that of the all the members of the legislative assembly they got implemented. And here we close the video. We will discuss the next chapter in the next video. Thank you, have a nice day. And बेटा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.